إخواننا علموننا الموت خلائق سبيل ربنا. کوئی اتنا خاص گھوڑا نہیں ہے. محبت نہ ہوتی تو شاید وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو کچھ کر گزرے. ملکہ چھوڑ گئی. سلیب کی خاطر یروشلم کی بازیابی کے لیے جا رہے ہیں ہم. ہمیں دراصل تلاش ہے اس بیلین کی جس نے بچایا تھا یروشلم. السلام علیکم ویورز، کنگڈم آف ہیون کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام میں گاڈفرے کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے بیلین کو اس کے فرائض سمجھا رہا تھا اور اسے یہ ذہن نشین کروا رہا تھا کہ وہ اپنا فرض نہ بھولے. وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو یاد کر لو جو میں نے تمہیں سمجھائی ہیں. گاڈفرے کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے گاڈفرے اپنی ایک انگوٹھی اتار کر اپنے بیٹے بیلین کو دے دیتا ہے. اتنے میں ایک سپاہی تلوار اٹھا کر گاڈفرے کو دیتا ہے. گاڈفرے اپنے بیٹے کو کمزوری کی حالت میں تلوار تھماتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم ایک نائٹ ہو اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اٹھو میرے بیٹے بیلین. گاڈفرے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا ہوتا اور بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کمزوری کے باعث گرنے لگتا ہے. جیسے ہی گاڈفرے گرنے لگتا ہے اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں تو اس کا بیٹا بیلین اسے سنبھال لیتا ہے. سپاہی سب یہ نا امیدی سے منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. گاڈفرے اسے لرزی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ پہلے بادشاہ کی زندگی نہ رہے تو بادشاہ کے بعد لوگوں کی زندگی کو بچانے کا اہم مقصد یہی ہونا چاہیے کہ بادشاہ لوگوں کی زندگی کا محافظ بنے اور یہی کام اصل نائٹ کا ہوتا ہے کہ ایک نائٹ کا اصل کام سرپرستی کرنا ہے، اپنے قوم کے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے. ساتھ کھڑے سپاہیوں سے ایک سپاہی گاڈفرے رضا الہی کی حالت میں ساتھ کھڑے ایک سپاہی گاڈفرے کی اس نزا کی حالت کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ وقت اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کا ہے، اپنے بیٹے سے باتیں نہ کریں. اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور خدا سے معافی طلب کریں اور پوچھتا ہے سپاہی کہ کیا آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. گاڈفرے نظروں سے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے آخری اپنی زندگی کی کچھ سانسیں بھرتے ہوئے گاڈفرے کہتا ہے کہ ہاں میں شرمندہ ہوں اور خدا کے پاس جا کر میں کیا منہ دکھاؤں گا. مجھے اپنے سارے گناہوں پر شرمندگی ہے لیکن ایک گناہ سے میں بے نیاز ہو گیا ہوں اور وہ گناہ میرے بیٹے کی طرف سے تھا جو کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بتا پایا تھا کہ میں اس کا باپ تھا اور میں اتنا عرصہ اس سے دور رہا. اتنے میں گاڈفرے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بیٹے بیلین کی طرف دیکھتا ہے اور اسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر ایک تسلی دکھائی دیتی ہے کہ اب وہ اپنے بیٹے سے بے نیاز ہو گیا ہے. جیسے یہ دیکھتے ہوئے وہ رضا الہی سے جا ملتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے. سب سپاہی سر جھکا لیتے ہیں، افسوس کے مارے، ندامت کے مارے وہ اپنا سر جھکائے رہتے ہیں اور انہیں اپنے بادشاہ کے مرنے کا بہت دکھ ہوتا ہے. یہ عالم نہایت ہی نازک ہوتا ہے. جب ایک بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی قوم کمزور پڑ جاتی ہے. گاڈفرے چونکہ اب نہیں رہا اس دنیا میں، اب اس کا ایک خاص اور قریبی سپاہی بیلین کو کہتا ہے، کچھ باتیں اسے کہتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیلین آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے والد کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا یورشلم
यरूशलेम जाए और वहाँ जाकर जो लोग बहुत मुश्किल में हैं उनकी मदद करे। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा यरूशलेम जाए, क्योंकि वो जगह बहुत मुकद्दस मानी जाती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल है और कठिन है और खतरनाक भी है। लेकिन अगर खुदा आपसे राजी है तो आपके हर कदम पर आसानी होगी और आपका काम आसान हो जाएगा। खुदा आपसे राजी हुआ तो वो आपसे काम लेगा, तो वो आपको खतरों में भी आपकी मदद फरमाएगा। लेकिन अगर खुदा आपसे राजी नहीं है तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि खतरों का मुकाबला करना ही एक नाइट कहलाता है। खुदा आप हिफाजत फरमाए, आपका रास्ता आसान हो जाए। लेकिन अगर मुश्किल दरपेश आती है तो हम मिलकर डट कर उसका मुकाबला करना है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। बेलियन कुछ शकी सोच पर पड़ जाता है और फिर इसी दौरान काफिला रवाना हो जाता है। पहले ही फिजा में बादशाह की वफात का सदमा झूम रहा होता है और पानी भी वही मंजर दिखा रहा होता है। पानी एक खौफनाक मंजर दिखा रहा होता है। रात का वक्त होता है, गहरे पानी पर इंसान को खौफ आता है क्योंकि उसकी तेज लहरें इंसान को मौत की तरफ लेकर जाती हैं। बेलियन अपने बाप की याद में अफसुर्दा बैठा होता है। जैसे कि लहरें पहले ही जोश मार रही थीं, अचानक से तूफान का समा हो जाता है। नीस तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। बहरी जहाज जिसमें बेलियन और उसके सिपाही मौजूद थे आपे से बाहर होने लगता है। तूफान की तेजी की वजह से तमाम लोग सहमे हुए होते हैं। यकायक उनका जहाज तूफान का शिकार होकर डूब जाता है और गहरे पानी में चला जाता है। ये मंजर एक दिल दहला देने वाला था। हमारे जहनों में ये था कि अगला मंजर क्या होगा, क्या कोई बचेगा या सब मर जाएंगे, क्या बेलियन बचेगा या नहीं। सवाल तो ये पैदा होता है कि बेलियन अगर ना बचा तो कहानी आगे कैसे जाएगी। लेकिन अगले दिन ही बेलियन बेहोशी की हालत से बेदार होता है, जहाँ पूरी तरह से तबाही दिखाई देती है और कुछ सिपाही उसे मुर्दा पाए जाते हैं। बेलियन लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ा होता है। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और चलने लगता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल का अंदाजा लगाता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। बेलियन को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही होती है और वो पानी ढूंढ रहा होता है। इतने में वो अपने एक मरे हुए साथी के पास पानी की एक बोतल पाता है। वो उसे जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठा लेता है और पानी पीता है। अपनी प्यास बुझाता है और उसे इस पानी पीने से थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। बेलियन को एक घोड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है वो उसके आपे से बाहर हो जाता है। बेलियन बहुत कोशिश करता है कि वो उसे काबू कर सके, लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाता और घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। बेलियन कमजोरी के बायस वहीं पड़ा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। बेलियन अपना सफर अकेले ही जारी रखता है क्योंकि तूफान के बायस उसके साथ कोई भी साथी नहीं था। सब मर चुके थे या अगर कोई बचा भी था तो वो वहाँ पे नहीं था। अब बेलियन एक दश्त में पहुँच जाता है। चलते चलते दश्त की तपती धूप, तपती रेत में बेलियन का बुरा हाल होता है। बेलियन को फिर से प्यास की शिद्दत ने तबाह किया होता है। बेलियन को एक जगह दश्त में पानी की आवाज आती है। वो देखता है कि वहाँ पे थोड़ा सा पानी रुका हुआ है। वो वहाँ जाता है और पानी पीता है। वो उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। ये वक्त बेलियन के लिए निहायत ही मुश्किल वक्त होता है। इतनी देर में बेलियन को साहिल पर एक घोड़ा दिखाई देता है। वो जल्दी से तेज कदमों से उस पर काबू पा लेता है और इस दफा अपनी गलती को ना दोहराते हुए घोड़े को थाम लेता है। इतने में वो एक जगह दरख्त के नीचे अपना घोड़ा और वो दोनों कयाम पजीर होते हैं और दूसरी तरफ से दो घुड़सवार उसे उसकी जानिब आते दिखाई देते हैं। वो तेजी से बढ़ते हैं। उनमें से एक घुड़सवार उसे कहता है कि मेरे साथ जो आदमी है वो एक मुस्लिम है और वो चाहता है कि ये उसकी सरजमीन है और ये घोड़ा भी उसी का है। बेलियन कहता है कि ये घोड़ा उसका नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मुझे ये घोड़ा साहिल से मिला है, तो ये घोड़ा अब मेरा हो गया। वो बंदा बेलियन की बात उस तक पहुंचाता है, लेकिन वो बंदा नहीं मानता। वो कहता है या तो लड़ाई करे या तो मुझे घोड़ा दे दे। बेलियन कहता है कि मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ। बेलियन को आखिर लड़ाई पर वो मजबूर कर देता है। बेलियन राजी हो जाता है लड़ाई के लिए। अब बेलियन और उस आदमी में तलवारबाजी शुरू हो जाती है। बेलियन उसके साथ उसी तरीके से लड़ता है जैसे कि उसके बाप गॉडफ्रे ने उसे तरबियत दी होती है। बेलियन उसे कहता है कि घोड़े से उतर जाओ और उतर कर मेरे साथ तलवारबाजी करो। वो उसे कहता है और अपने बारे में बताता है कि मैं बेलियन एक सरदार हूँ। तो तीसरा खड़ा शख्स कहता है कि ये बात इब्लिन तक पहुँचाता है आपको। उसे कहता
कहता है कि इब्लिन का सरदार तो आपकी तरह नहीं है, आप तो एक नौजवान हैं। इब्लिन का सरदार तो बूढ़ा है, तुम नहीं हो। बेलियन कहता है अब मैं हूँ, वो नहीं रहा। तलवारबाजी निहायत संजीदा हो जाती है और तीसरा खड़ा शख्स इस पूरी सूरत हाल को देख रहा होता है। वो उसे मना करता है जैसे ही हालत संगीन होती है, लेकिन दोनों आपे से बाहर होते हैं और लड़ाई नहीं रुक पाती। इतने में बेलियन उस इंसान की तलवार से सर को कलम कर देता है और वो हलाक हो जाता है। तीसरा शख्स जो वहाँ खड़ा होता है वो बहुत डरा हुआ होता है और बहुत सहमा हुआ होता है। वो उससे डर जाता है कि कहीं ये मुझे भी हलाक न कर दे, लेकिन वो कहता है कि हमारे आका की मौत नाकाबिले बर्दाश्त है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो शख्स बेलियन से कहता है कि बिल्कुल मौत बरहक है, इस दुनिया में सबको मौत का मजा चखना है। वो इसे ये कहता है कि मुझे अगर तुम मारना चाहते हो बेलियन तो मार लो, लेकिन बेलियन उसे गौर से देखता है और कुछ सोच में पड़ जाता है और उसे ये हुक्म देता है कि मुझे यरूशलेम ले चलो। बेलियन और वो दोनों साथ घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इब्लियन अर्ज़े मुकद्दस पहुंच जाता है। सब लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं। काफिले अपने सिपाहियों की निगरानी कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ कबायली लोग कयाम पजीर होते हैं। बेलियन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो घुड़सवार बेलियन के घोड़े की तारीफ करता है, उसे कहता है कि बहुत ही शानदार घोड़ा पाया है आपने। बेलियन खुश होता है और कहता है कि वो उसे रख सकता है। घुड़सवार बहुत हैरत भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं, आप तो सरदार हैं, मैं गुलाम हूँ। बेलियन कहता है कि मैं भी पहले गुलाम था लेकिन अब सरदार हूँ, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक मैं किसी को कमतर नहीं समझता। ना गुलाम बनना पसंद करता हूँ और ना गुलामी पसंद है और ना किसी को गुलाम बनाना पसंद करता हूँ। इस गुलामी जैसे फितने को मैं खत्म करना चाहता हूँ। इतने में वो उस घोड़े पर सवार शख्स उस इंसान का किरदार बताता है जिसे बेलियन अभी कत्ल कर कर आया होता है। वो उसे कहता है कि जिस शख्स को, जिस मकतूल को आपने दश्त में पाया था उसका नाम मुस्लिम शमशीर जन था, उसका असल नाम मोहम्मद अल-फाइज था और वो मुसलमानों का एक नामवर शमशीर जन था। बेलियन उसे कहता है कि मेरी दुआएं उसके साथ हैं। घुड़सवार उससे मुतासिर होकर कहता है कि आपकी खूबियाँ आपसे पहले दुश्मनों तक पहुँचेंगी, आप इतने आला ज़र्फ के मालिक हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हो जाता है। बेलियन आगे बढ़ता है और एक ज़ईफ इंसान से पूछता है कि वो जगह कहाँ है जहाँ यीशु मसीह मसलूब है। इतने में वो शख्स उससे इशारा करता है और बताता है कि वो वहाँ पे है। इतने में बेलियन उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उस इंसान ने उसको रहनुमाई की होती है। वो उस जगह पे पहुँच जाता है, लेकिन उस जगह का तायन करते हुए बेलियन एक सोच में पड़ जाता है। एक आदमी उसे रास्ते में सलाम भी करता है, चूँकि यहाँ पे हर कबायली लोग मौजूद हैं। बेलियन आगे बढ़ता है और बुलंदी पर पहुँचता है। इतने में मसीह का निशान निकालकर दिल ही दिल में दुआ करता है कि अपने मकसद में कामयाब कर दे मुझे मेरा खुदा। बेलियन सब लोगों को देख रहा होता है। अब सुबह हो जाती है और बेलियन उस सलीब के निशान को जो उसकी बीवी का था उसे निकाल कर दिखता है और अपनी बीवी से दिल ही दिल में बात करता है कि तुम मेरे दिल में हो, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। बेलियन बाजार में लोगों को खरीदो फरोख्त करते हुए देखता है और खुद भी बीच में शामिल हो जाता है। जैसे ही वहाँ से गुजर रहा होता है कुछ लोग उसका ताक़ुब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेलियन की तलवार एक नामवर तलवार थी और उस तलवार की पहचान सबको पता थी। एक आदमी जैसे ही उसके पास गॉडफ्रे की तलवार देखता है वो समझ जाता है कि बेलियन कोई खास बंदा है। वो उससे कहता है, वो अपने कुछ और सिपाहियों को भी अपने साथ मिला लेता है और बेलियन का ताक़ुब करता है। बेलियन पानी पीने की गर्ज से एक जगह रुकता है और वो चंद लोग जो उसका ताक़ुब कर रहे होते हैं उसके पास पहुँच जाते हैं। सब बेलियन तलवार को देखते हैं और पहचान लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई? बेलियन कहता है कि तुम बताओ। सिपाही कहते हैं ये तो गॉडफ्रे की तलवार है, वो हमारे सरदार हैं। सिपाही उसे आंखों का रंग पूछते हैं, उससे कदो कामत पूछते हैं कि कहीं झूठा इंसान तो नहीं, लेकिन बेलियन आंखों का रंग भी सही बताता है और सब चीजें उसे सही बताता है। इतने में लोग समझ जाते हैं कि यही असल में बंदा है। पास खड़े सिपाही सब समझ जाते हैं और बेलियन से कहते हैं कि आप ही अब हमारे सरदार हैं, आप हुक्म बजा लाएं। आपके
हर हुक्म को पूरा करेंगे और बेलियन को अपना सरदार मान लेते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। अगली सुबह बेलियन अपने आप को एक खूबसूरत महकती हुए बिछुनों पर सोया पाता है और उठकर देखता है कि वो कहाँ पर है। अपने कपड़े देखकर हैरान हो जाता है। निहायत ही शफाफ कपड़े पहने होते हैं। जैसे ही बेलियन बाहर आता है सब सर झुकाते हैं। दूसरी जानब दो लोग घोड़े को तंग कर रहे होते हैं। बेलियन उनकी रहनुमाई करता है कि घोड़े को ऐसे लगाम नहीं देते हैं, वो तुमसे बाजिद हो जाएगा, उसे प्यार से काबू करो। इतने में एक घुड़सवार जो के एक खूबसूरत लड़की होती है और वो बहुत ही निहायत खूबसूरत कपड़ों में लिपटी होती है, आन पहुंचती है। वो बेलियन को देखती है और कहती है कि यहाँ का आका कौन है। बेलियन कहता है यहाँ कोई आका नहीं। फिर वो उससे पानी मांगती है। बेलियन उससे पानी देता है और उसका शुक्रिया अदा करती है और नशीली नजरों से देखती है और उसे ऐसे दिखाती है कि वो जैसे उसे नहीं जानती और हुक्म देती है कि गॉडफ्रे के बेटे को कहना कि वो उससे मिलने आ जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हो जाती है। इतने में एक सिपाही उसे कहता है कि आपको क्या आपका एक मकसद मिल चुका है यरूशलेम में, कि मैं यरूशलेम में लोग अपने गुनाहों की तलाफी करते हैं। लेकिन बेलियन कहता है कि मैं नाउमीद हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि खुदा मुझसे राजी है, मुझे लगता है मैं गुनहगार हूँ, मुझ पे खुदा की रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो कहता है मुझे अपने मजहब पर जरा भी यकीन नहीं है। सिपाही कहता है कि मजहब जैसी कोई चीज नहीं, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं और फिरके हैं और अपनी बातों को खुदा की बातें कहलवाते हैं और अपना एक मखसूस मजहब बना लेते हैं। वो उसे कहता है जिंदगी में कामयाब रहने के लिए अच्छे अमाल करना ही मजहब है और कमजोर लोगों को सहारा दिया जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और नेकी की असलियत हमारा दिल है कि हमारा जो दिल है वो नेकी करते हुए उसकी क्या नियत है, या तो वो अच्छी नियत है या तो वो बुरी नियत है। हमारे अमाल का दारोमदार हमारी नियतों पर है। अगली सुबह एक शोर बरपा होता है, हर कोई चिल्ला रहा होता है। बादशाह ने 6 बरस अपने इक़्तिदार के यरूशलेम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ गुजारे होते हैं। वो भी बहुत अमन के साथ गुजारे होते हैं। वो यही हुक्म जारी करते हैं कि जो मुस्लिम कौम के दौरे इक़्तिदार में थी वो उसे ये कहते हैं कि चर्च के फौजी अरब मुसलमानों के कातिल हैं, दुश्मन हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करते और बिला वजह मौत तो यसु का हुक्म भी नहीं है और ना ही बादशाह का। और दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। एक मसीह बरादरी का ज़ईफ बूढ़ा शख्स कहता है कि मुसलमान कभी सच्चा गवाह नहीं बन सकता, क्योंकि मसीह बरादरी मुसलमानों से नफरत करती है तो वो उसे नहीं मानता। इतने में एक नाइट उसे कहता है कि ये बात मैं नहीं मानूंगा। मसीह बरादरी का शख्स कहता है कि मैं भी इंतजार करूंगा खुदा की हुकूमत का, जिसमें वो हर इंसान को एक जैसा बना देगा, क्या इंसानों में फर्क नहीं। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इतने में बेलियन वहाँ पहुँचता है और वो जो कि एक लिबास में मुलव्विस होता है उसे सलाम करता है और कहता है मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो गॉडफ्रे की तारीफ बयान करता है और कहता है कि वो इस दुनिया से चला गया है। बेलियन कहता है कि गॉडफ्रे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पास खड़ा शख्स कहता है कि बेशक वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन अच्छी उम्मीदें भी उसी के साथ वाबिस्ता थी और वो भी उसी से चली गई हैं। पिछले दिनों यहाँ जंग का समा बरपा था, तुमने जिस सरदार का कत्ल किया था, लेकिन गॉडफ्रे की वजह से वो मुस्तरिद हो गया और ये पैगाम दिया गया कि वो तलवार तुमने गलती से उठाई थी और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती। जो कहा जाता है वो मान लिया जाता है। वो बेलियन से सलाहुद्दीन के बारे में पूछता है कि मुझे ये तो बताओ कि तुम इनके बारे में क्या जानते हो, तुम उसे अपना क्या मानते हो। बेलियन कहता है मैं उसे अपना सुल्तान मानता हूँ। दमिश्क में 2 लाख सिपाही हैं और हम उनकी हुकूमत में घेरे हुए हैं। वो चुपचाप, वो चाहें तो जंग कर सकते हैं, वो चाहें तो जंग रोक सकते हैं और मसीह बरादरी के फौजी उसे हर दिन जंग पर उकसा रहे हैं और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन मैं इस फितने को दबाने की कोशिश करता हूँ और इस जगह के अमन को कायम रखना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ सलाहुद्दीन ही कायम कर सकते हैं। वो बेलियन से उसके बाप की आयत करता जिम्मेदारी का पूछता है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी सिखाई थी। बेलियन कहता है सिर्फ एक जिम्मेदारी, वो भी एक जानबाज नाइट की। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि ये दुनिया असली नाइट को पहचान ले तो वो यरूशलेम को हासिल कर लेगी। इतने में वो उससे खाने का पूछता है। यकायक ऐलान होता है कि शहजादी इसबेला और उनके शोहर कैडी लॉर्ड्सनेल तशरीफ लाए हैं। सब एहतरामन खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि फ्रांस में आपने कितने नाइट ढूंढे हैं। पास खड़ा शख्स कहता है कि बादशाह की वफादारी का हल्फ भी उठवाया है मैंने और ये लाजमी बात है। कैडी लॉर्ड्सनेल बेलियन को तकता है और कहता है तंजिया तौर पर कि तुम यहाँ अब खाओगे, क्या तुम इस काबिल हो कि हमारे साथ बैठकर खाना खाओगे। वो कहता है ये दस्तरखान तो बादशाह का है। तो वो तंजिया तौर पर हंसता और कहता है बादशाह तो अब नहीं रहा,
तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम कमतर हो। बेलियन उसकी बातें सुन रहा होता है। इतने में कैडी लॉर्ड्सनन उसकी बेइज्जती करते हुए वहाँ से चला जाता है और अपनी साथ ही बीवी की तारीफ करता है। वो कहता है कि मेरी बीवी मेरे अच्छे बुरे में खुश रहती है, चाहे वो दिखावा करे या वो असलियत दिखाए। इतने में कैडजिनन कहता है मैं कैडले नूर से मिलने जा रहा हूँ। वो उसे मना कर देता है कि वो फितना फसादी है, मैं नहीं मिलूंगा। वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं तो मुअज्जिज हूँ, मैं इस जगह का बड़ा हूँ। और बाकी लोग खाना शुरू कर देते हैं। शहजादी बेलियन को मिलने का कहती है और कहती है कि उसे किसी ने बुलाया है। बेलियन उसके साथ जाता है और उससे कुछ बातें कर रहा होता है। शहजादी कहती है कि उसे गॉडफ्रे से बहुत प्यार था और इसी वजह से वो भी अब उसे अच्छा लगने लगा है। बेलियन कहता है कि अच्छा, आप मेरे बाबा को पसंद करती थी। इतने में शहजादी कहती है कि मुझे ये लग रहा है कि तुम मुझसे डर रहे हो। बेलियन कहता है हाँ, शायद डर भी रहा हूँ और नहीं भी। शहजादी हंसती है और कहती है कि मुझ जैसी औरत के दो रुतबे होते हैं, एक वो जो महफिल में दिखाया जाता है और एक दूसरा रुतबा जो कि मैं एक तन्हाई में हूँ। एक शख्स उनको बातें करते हुए सुन लेता है और शहजादी और बेलियन जैसे ही उसे देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रवाना हो जाता है। बेलियन शहजादी के साथ रवाना होता है तो शहजादी उसे रोक देती है और कहती है कि इस तरफ नहीं, दूसरी जानिब जाना है। बेलियन दूसरी जानिब बढ़ता है, उनके एक बड़े लीडर के पास पहुँचता है। वो उससे कहता है कि चले आओ अंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो उससे मिलता है और उसे कहता है कि गॉडफ्रे उसका उस्ताद था। एक दफा मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसका दर्द का अंदाजा मुझे भी इतना नहीं था जितना गॉडफ्रे को था। मैं ये हैरान था कि गॉडफ्रे मेरे बाप को ये बताते हुए रो पड़े कि मुझे कोढ़ है। यहाँ के मुसलमानों का ख्याल है कि जुल्म करने की वजह से मुझ पर खुदा का अजाब हुआ है और वो ये भी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे लिए वहाँ का एक और अजाब बरपा है जो इससे ज्यादा बढ़कर दर्दनाक है। उसने कहा कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती है ये कि मैं यहाँ पे भी अजाब सहूँ और वहाँ की दुनिया में भी अजाब सहूँ। वो उसे अपना एक शानदार वाकया बताता है। कहता है कि जब मैं 6 साल की उम्र में था मैंने एक शानदार कामयाबी हासिल की, तो मैं ये समझने लगा था कि मैं लाफानी हो गया हूँ। लेकिन इस बीमारी की वजह से अब लगता है कि शायद ही मैं 30 साल भी जिंदा रहूं। वो कहता है कि हमारा कोई इख्तियार नहीं, जो बादशाह का इख्तियार है वही चलता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि बादशाह की हुकूमत से जिस्मों पर चल सकती है, रूहों पर नहीं चल सकती, क्योंकि हर चीज बादशाह की ताबे हो सकती है लेकिन इंसान की रूह इंसान के सिवा किसी और की ताबे नहीं हो सकती। वो बेलियन को कहता है कि तुम्हारी रूह तुम्हारी ताबे है और जब तक तुम चाहोगे वो तुम्हारी ही ताबे रहेगी और तुम्हें अपने गुनाहों की खुदा के सामने माफी मांगनी चाहिए। अपने अच्छे या बुरे अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। ये नहीं बोला जाएगा कि नेकी नहीं की तो तुम बोलोगे कि नेकी करना मुश्किल था। वो सिर्फ ये कहेंगे कि नेकी क्यों नहीं की। वो उसे अपने बाप के घर जाने का कहता है कि तुम अब वहाँ चले जाओ, वहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है और लाचारों लोगों को हिफाजत में ले लेना, और अगर मैं लाचार हो जाऊं तो मुझे भी हिफाजत में ले लेना। अगले दिन बेलियन अपने साथियों के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बाप की सल्तनत की तरफ इब्लिन रवाना हो जाता है। कुछ सफर तय करने के बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। सिपाही उसे कहता है कि ये इब्लिन है। बेलियन को सब खुश आमदीद कहते हैं। सिपाही उसे उसके बाप की अहमियत बताते हुआ कहता है, वो उसे बताता है कि आपकी यहाँ 1000 एकड़ जमीन है और आपकी इस 1000 एकड़ की जमीन पर हर तरह के कबाइलों मजाहिब आबाद हैं और आपकी 100 बैलें भी मौजूद हैं। वो सिर्फ आपकी हैं। बस यहाँ पर एक चीज की कमी है जो कि हम पूरी नहीं कर पा रहे। बेलियन कहता है क्या? वो कहता है यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। वो कुछ लोगों को खुदाई का हुक्म देता है कि अगर खुदाई की जाएगी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में तो किसी न किसी हिस्से में तो पानी तो निकलेगा। तो इसी तरह कुछ लोगों का ग्रुप एक जगह शुरू हो जाता है खुदाई में, कुछ लोगों का ग्रुप दूसरी जगह खुदाई में शुरू हो जाता है और बेलियन भी ये देखते हुए उन लोगों के साथ मिलकर काम शुरू करता है। एक तरफ एक ग्रोह जो खुदाई कर रहा होता है उन्हें गीली मिट्टी निकलने लगती है और नजर आ जाती है। वो जल्दी से एक बच्चे के हाथ पैगाम भिजवाता है और बेलियन को बुलवाता है। बेलियन जो वहाँ पे काम कर रहा होता है उसका पीछा करता है और उस जानिब बढ़ता है। बेलियन और कुछ लोग पानी को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें पानी के निकलने की नई उम्मीद नजर आ जाती है। बच्चे, बेलियन सब खुशी के समा में होते हैं। बेलियन को उस जगह जाने का कहते हैं। बेलियन और उसके इलाके के लोग खुश हो जाते हैं। वो उसे ये कहते हैं कि इसको अब अच्छी तरह इसकी दीवारों को पक्का कर दिया जाए ताकि पानी गंदा ना हो। दूसरी जानिब मजदूर कामों में लग जाते हैं और पानी की रवानी के लिए जगह बनाते हैं। इतनी ही देर में एक बच्चा बेलियन को बुलाने आता है और कहता है कि कुछ लोग आए हैं। तो दूसरी जानिब घुड़सवार पर मौजूद कुछ औरतें आती हैं। बेलियन वहाँ से उस तरफ बढ़ता है और देखता है कि
कौन आया है उसे हैरत होती है। वो आगे जाता है और देखता है कि 2 रूपोश औरतें घोड़ों पर सवार हैं और अपने लश्कर के साथ आई हैं। बेलियन उनके पास पहुंचता है और जैसे ही वो पास पहुंचता है तो देखता है शहजादी इज़ाबेला होती हैं। इज़ाबेला अपने चेहरे से निकाब उतार कर कहती हैं कि वो कनान जा रही हैं। कहती हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ के पानी को शराब बना दिया था। वो उसे कहती हैं, मुझे देखते ही रहोगे, इस्तकबाल नहीं करोगे? बेलियन कहता है, क्यों नहीं, खुशामदीद। सब लोग खुश हो जाते हैं और रास्ता छोड़ते हैं। काफिला आगे बढ़ जाता है। इतने में इज़ाबेला के गुस्ल के लिए एहतमाम होता है। तमाम लड़कियां उनका एहतमाम करती हैं और खुशबुएं फैलाती हैं। इज़ाबेला गुस्ल लेने के बाद बैठती हैं और वो देखती हैं कि बेलियन काम कर रहा है आम लोगों की तरह। वो उसे देखती हैं तो बहुत खुशी महसूस करती हैं। उसे अच्छा लग रहा होता है कि बेलियन में जरा भी गरूर नहीं। शाम का वक्त होता है। शहजादी और बेलियन आमने सामने बैठे होते हैं। बेलियन उसे कहता है कि औरत की रफाकत की मुद्दत हो चुकी है। मुझे बहुत अरसा हुआ है मैं किसी औरत की रफाकत में नहीं बैठा हूँ। वो हंसती है और उसे अजीब नजरों से देखती है। बेलियन भी उसे देख रहा होता है और शहजादी इज़ाबेला बेलियन को कहती है कि मैंने तुम्हें दिन में काम करते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है कि ये जगह, ये सरजमीन मेरा घर है, मैं इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं यहाँ की लोगों की मदद करूंगा, यहाँ की लोगों की हिफाजत करूंगा और यही एक असली नाइट का काम है और मैं अपने फराइज पूरी जिम्मेदारी से अंजाम दूंगा। शहजादी उसे एतमाद तरीके से देख रही होती है। इतने में मगरिब की आजान का वक्त हुआ चाहता है। कुछ लोग जो कि मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ रहे होते हैं और सजदा गो होते हैं। बेलियन और शहजादी एक साथ खड़े होते हैं। शहजादी बेलियन को कहती है कि ये लोग मुसलमान हैं, ये लोग जब आजान होती है तो नमाज पढ़ते हैं। शहजादी कहती है कि इनकी ये इबादत इनको यकजान और यकल्ब कर देती है और इनके नबी का कहना है कि तस्लीम करना ही हकीकत है, मतलब अपने गुनाहों की तलाफी करना अच्छी बात है और हमारे मसीह कहते हैं कि आपको खुद इख्तियार है। बेलियन उसकी ये बात सुनकर उसे कहता है कि क्या शहजादी आपको अपने आप पर इख्तियार है? क्या आपने अपने शोहर को अपने इख्तियार से चुना था? शहजादी सोच में पड़ती है और कहती है कि नहीं, मेरा इख्तियार तो नहीं था, मैं तो उस वक्त सिर्फ 15 बरस की एक छोटी नासमझ लड़की थी, ये मेरी माँ का चुनाव था। बेलियन उसकी बातों को गौर से सुनता है। शहजादी बहुत ही नाउमीद दिखाई दे रही होती है। अब आपको एक खूबसूरत मंजर नजर आ रहा होगा। इस मंजर में क्या होता है और अगली एपिसोड में क्या होता है, बेलियन और शहजादी के बीच क्या बातें होती हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। आपको ये एपिसोड कैसी लगी जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज। बड़े सिपाहियों से एक सिपाही गॉडफ्रे की इस रजा इलाही की हालत में साथ खड़े एक सिपाही गॉडफ्रे की इस नज़ा की हालत को देखते हुए बोलता है कि ये वक्त अपने खुदा से हम कलाम होने का है, अपने बेटे से बातें ना करें। और साथ ही ये कहता है कि आप अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें और खुदा से माफ़ी तलब करें। और पूछता है सिपाही कि क्या आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं? गॉडफ्रे नज़रों से, हसरत भरी नज़रों से उसे देखता है और उसे कहता है, आखिरी अपनी ज़िंदगी की कुछ सांसें भरते हुए गॉडफ्रे कहता है कि हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि अब तुम एक नाइट हो। और उसे ये भी कहता है कि उठो मेरे बेटे बेलियन। गॉडफ्रे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए अपने आप पर काबू नहीं पा रहा होता और बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है और वो इस कमज़ोरी के बायस गिरने लगता है। जैसे ही गॉडफ्रे गिरने लगता है, उसके कदम डगमगाते हैं तो उसका बेटा बेलियन उसे संभाल लेता है। सिपाही सब ये नाउमीदी से मंजर देख रहे होते हैं। गॉडफ्रे उसे लर्जी हुई आवाज़ में कहता है कि पहले बादशाह की ज़िंदगी ना रहे तो बादशाह के बाद लोगों की ज़िंदगी को बचाने का अहम मकसद यही होना चाहिए कि बादशाह लोगों की ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ बने। और यही काम असल नाइट का होता है कि एक नाइट का असल काम
سرپرستی کرنا ہے. اپنے قوم کے لوگوں جھکائے رکھتے ہیں اور انہیں اپنے بادشاہ کے مرنے کا بہت دکھ ہوتا ہے. یہ عالم نہایت ہی نازک ہوتا ہے. جب ایک بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی قوم کمزور پڑ جاتی ہے. گاڈفرے چونکہ اب نہیں رہا اس دنیا میں، اب اس کا ایک خاص اور قریبی سپاہی بیلین کو کہتا ہے